Good morning, dear students. Today I am going to teach you a new lesson. Its name is Saving the Bird. This is your chapter number 4, which is mentioned on your book, page number 54. So let's start this chapter, Saving the Bird. Why its name is Saving the Bird? Because this is story about the two birds and the famous person, Mr. Abraham Lincoln, who we all know very well about the presidents of United States of America. So let's start. During reading time, you will know about the story of this chapter. So on your page number 54, it is mentioned. First of all, look at the pictures of these great personalities. Here are the pictures. First is Mahatma Gandhi, whom we all know very well about that. Second is Martin Luther King Jr. Third is Nelson Mandela. And fourth is Saint Mother Teresa. Why are these people thought of as heroes? कि ये जो people है, ये person है, whom we all know very well as a hero क्यों जाने जाते हैं? Pick the reason from these options. You have to tick the correct reason. Pick out the reason. Reasons are given here. Options. For example, first is they had talent, क्योंकि उनके अंदर talent था. Second is they work to make the world a better place. उन्होंने work किया है संसार में a better place, मतलब संसार को अच्छे प्लेस पर, अच्छे स्थान पर पहुंचाने के लिए. They work for the people. That's why. They were kind and selfish. वो kind थे और selfish, मतलब अपने आप अपना स्वार्थ चाहते थे. You can say they received many awards, या उन्होंने बहुत सारे awards receive किए इसलिए. So which one is correct here? You can tick on second. They work to make the world a better place. उन्होंने वर्क किया है संसार में एक बेटर प्लेस, वहां तक उसे पहुंचाने के लिए, लोगों के लिए संसार के अंदर वर्क किया है इन्होंने. That's why they are known as the leader of their qualities. So you can read downside portion. What are some of the qualities you think a great person should have? What are the some of the qualities? कि कौन सी some कुछ qualities है जो एक great person, एक व्यक्ति को महान बनने के लिए उसमें होनी चाहिए. So यहाँ पर reading section is. We will now read about an incident from the life of Abraham Lincoln. This is story about Mr. Abraham Lincoln. So we will now read an incident. हम इस reading इस chapter के दौरान एक incident घटना के बारे में उनके जीवन की पढ़ेंगे. The 16th President of United States of America. We all know that Mr. Abraham Lincoln, who was the 16th President of America. Abraham Lincoln had fought for the right and independence of underprivileged people. It means underprivileged means होता है needy person. Abraham Lincoln ने क्या किया था? Had fought. Fight second form is fought is here. For the right, अधिकारों के लिए, and independence और स्वतंत्रता के लिए. For underprivileged people. Underprivileged means होता है needy people. जो needy poor people होते हैं उनके अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई करी थी. One day in spring. Spring means होता है आपकी जो वसंत ऋतु होती है उसके लिए कहा जाता है. One day in spring, 4 men were riding on horseback along a country road. One day स्प्रिंग सीजन का टाइम था, यानी वसंत जो ऋतु थी उस दौरान 4 मैन, 4 जो पुरुष थे, यू कैन से लोग थे, वर राइडिंग ऑन हॉर्स बैक अलोंग ए कंट्री रोड. वो हॉर्स बैक यानी घुड़सवारी कर रहे थे अलोंग ए कंट्री रोड. अलोंग ये कंट्री रोड मीन्स यहाँ पे अलोंग मीन्स होता है के साथ, जो कंट्री रोड था, जो शहर की रोड थी, सड़क थी, उसके किनारे, उसके ऊपर यू कैन से. These men were lawyers and they were going to the next town to attend court. These men were lawyers. ये जो मैन थे वो क्या थे? लॉयर, ये वकील थे. And they were going to the next town, और ये दूसरे शहर में जा रहे थे to attend the court, कचहरी यानी कोर्ट जो होता है उसको अटेंड करने के लिए. It had been raining the previous night and the ground was very soft. It had been raining. जो previous night थी, पिछली रात थी, उस दौरान raining थी, बारिश हुई थी. And the ground was very wet. और जो ground था, मैदान था, वो बहुत ही गीला था. Water was dripping from the trees and the grass was wet. जो water था dripping यानी टपक रहा था from the trees, leaves जो trees थे, वृक्ष थे, उनसे पानी झड़ रहा था. And the grass was wet. और जो घास थी वो बड़ी गीली थी. The four lawyer rode along on behind another. अब जो ये 4 lawyer थे वो सवार थे, rode along मतलब चल रहे थे, one behind of another, एक दूसरे के पीछे. For the pathway, जो pathway means जो रास्ता था, path था, उसके ऊपर, was narrow, वो बड़ा ही narrow संकरा था, you can say congested. And the mud on each side of it was deep. और जो mud था वो कीचड़ था, जो गीली मिट्टी थी, वो each side
was deep, वो बड़ी ही गहरी थी दोनों तरफ. They rode slowly. Right second form is rode here. They rode slowly. वो बड़े ही धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपनी सवारी कर रहे थे. मतलब वो हॉर्स बैक सवार, हॉर्स के ऊपर बैठे थे और उनको बड़ा धीरे धीरे वो लोग चल रहे थे हॉर्स के थ्रू. Slowly and talk and laugh and were very jolly. वो धीरे धीरे सवार थे अपने घोड़ों को लेकर उनके ऊपर. एंड टॉक वो बातें कर रहे थे, लाफ वो हंस रहे थे. एंड वर वेरी जोली और वो बड़े ही आनंदित थे, मतलब बड़ा ही खुश मिजाज लग रहे थे सारे. नाउ टर्न योर पेज ऑन पेज नंबर 55. As they were passing through a grove of small trees. As they were, जैसे ही they were passing, गुजरे. Passing means होता है गुजरना. Through a grove. Grove means है orchard यानी जंगल you can say. Of small trees. Grove, forest where you are getting lot of trees. और स्मॉल ट्रीज जो वृक्ष थे उनके जो जंगल थे उनसे जब वो गुजरे. दे हियर्ड ए ग्रेट फ्लटरिंग ओवर देयर हार्ट्स एंड ए फीबल चिर्पिंग इन द ग्रास बाय द रोड साइड. सो दे हियर्ड ए ग्रेट फ्लटरिंग. फ्लटरिंग मीन्स है यहाँ पर साउंड ऑफ विंग्स, बीटिंग यानी जो बर्ड्स था तो उनकी उसके जो विंग्स थे उसकी आवाज आप कह सकते हो. यहाँ पे जो पक्षी था उसके फड़फड़ाने की आवाज. वर ओवर देयर हेड्स, उनके सर से उनको सुनाई दी, सरों के ऊपर से. एंड फीबल चिर्पिंग, फीबल मीन्स है वीक. और जो कमजोर चिर्पिंग इन द ग्रास बाय द रोड साइड. चिर्पिंग मीन्स जो लिटिल यंग वंस था यानी आप कह सकते हो जो पक्षी था उसका छोटा बच्चा. ठीक है, चिर्पिंग वो बहुत कमजोर जो चहचहा रहा था ग्रास, घास के अंदर बाय द रोड साइड, जो रोड था उसकी तरफ. सिट 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 केम फ्रॉम द लीफी ब्रांचेस अबाउट दैम. सिट सिट सिट, दिस इज वॉइस. ये जो आवाज थी केम जो आ रही थी, जो लीफी ब्रांचेस थी, जो घनी शाखाएं थी, जो घने पत्तों से भरी हुई थी. अबाउट दैम, उनके अंदर से. चिप 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 केम फ्रॉम द वेट ग्रास. और जो चिप 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 दैट साउंड केम फ्रॉम द वेट ग्रास, जो गीली जो घास थी उनसे आई थी. इट मीन्स जो बर्ड्स थे वो तो जो शाखाएं थी वृक्षों की शाखाएं उनके ऊपर बैठे थे तो वहां से साउंड क्रिएट कर रहे थे. और जो उनके यंग वंस थे वो जो छोटे पक्षी थे वो वेट ग्रास में थे तो वो वहां से साउंड क्रिएट कर रहे थे. चिप चिप मीन्स दे आर कम्युनिकेट इन देयर लैंग्वेज. वट इज द मैटर हियर. आज द फर्स्ट लॉयर. व्हाट इज द मैटर हियर, कि यहाँ पर क्या मुद्दा है. मैटर आप कह सकते हो क्या सिलसिला. आज द फर्स्ट लॉयर, जो पहला वकील था उसने पूछा. हुज नेम वाज स्पीड, जिसका नाम स्पीड था. ओ इट्स ओनली सम ओल्ड रॉबिन सैड द सेकंड लॉयर हुज नेम वाज हरदिन. इट्स ओनली सम ओल्ड रॉबिन्स. रॉबिन्स मीन्स यूरोपियन बर्ड. ये जो बर्ड्स है रॉबिन्स, ये यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है. तो वो सेकंड जो लॉयर है, वकील है, वो कह रहा है सम ओल्ड रॉबिन्स. ये तो क्या है, सम ओल्ड, ये बर्ड्स है, पक्षी रॉबिन्स है. सैड द सेकंड लॉयर, जिसका नाम क्या था, हरदिन. द स्टॉर्म हैज ब्लोन टू ऑफ द लिटिल वंस आउट ऑफ द नेस्ट. द स्टॉर्म, अब जो स्टॉर्म तूफान था जो उस रात आया था, हैज ब्लोन, वो उड़ा ले गया था. ब्लोन टू ऑफ द लिटिल वंस, जो छोटे पक्षी थे उनको, आउट ऑफ द नेस्ट, उनका जो घोंसला था उनसे. दे आर टू यंग टू फ्लाई. दे आर टू यंग, वो बहुत ही जवान थे. मीन्स दे आर यंग वंस. दे कांट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकते थे. एंड द मदर बर्ड इज मेकिंग ए ग्रेट फस अबाउट इट. एंड द मदर बर्ड, और जो मदर बर्ड थी वो उनकी जो माता पक्षी थी, उनकी जो माँ थी, वो क्या कर रही थी, मेकिंग ए ग्रेट फस, वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रही थी. मीन्स फस मीन्स वरीड, वेरी वरीड, उनको लेकर बड़ी चिंतित थी. अबाउट इट, उनके बारे में कंसर्न थी वो. व्हाट ए पिटी, दे विल डाई डाउन देयर इन द ग्रास, said the third lawyer, whose name I forget. What a pity. बड़े दुखपूर्ण. They will die down there in the grass. They will die, मर जाएंगे. There in the grass, said the third lawyer, जो तीसरा वकील था उसने कहा. Whose name I forget, जिसका नेम मैं भूल गया. Oh well, अच्छा फिर. They are nothing but birds, said Mr. Hardin. फिर मिस्टर हरदिन क्या कहते हैं, दे आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट बर्ड्स, ओनली बर्ड्स है. सैड मिस्टर हरदिन, हरदिन ने रिप्लाई किया. वाई शुड वी बॉदर, वाई शुड वी हैव टू बॉदर अबाउट दैम, हमें इनको लेकर, वाई वी हैव टू टेक ट्रबल, हमें इनको लेकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए. वी हैव टू नॉट वेस्ट अवर टाइम, वी हैव टू नॉट वेस्ट अवर एफर्ट ऑल्सो. बॉदर मीन्स टेक ट्रबल फॉर दैम. यस, वाई शुड वी, सैड मिस्टर स्पीड. यस, हाँ, वाई शुड वी, हम क्यों ले, सैड मिस्टर स्पीड, मिस्टर स्पीड ने कहा. द थ्री मैन एज दे पास लुक डाउन एंड सा द लिटिल बर्ड फ्लटरिंग इन द कोल्ड वेट ग्रास. द थ्री मैन, अब जो तीन मैन थे, आज दे पास, वो वहां से गुजर गए. लुक डाउन एंड सा, नीचे देखकर, दसा देखकर, लिटिल बर्ड्स फ्लूटरिंग इन द कोल्ड वेट ग्रास, जो फ्लूटरिंग फड़फड़ा रहा था, जो गीली ग्रास थी, घास थी, उसके अंदर.
They saw the mother robin flying about and crying to her mate. They saw, उन्होंने देखा the mother robin, जो उनकी मदर रोबिन थी, मादा पक्षी थी, फ्लटरिंग अबाउट, फ्लाइंग अबाउट, वो उड़ रही थी, एंड क्राइंग टू हर मेट, एंड शी इज क्राइंग. मेट मीन्स होता है यहाँ पे पार्टनर, और जो पार्टनर है उसका वो क्राइंग, वो भी चहचा रहा था, हर मेट अपनी मेट को लेकर, मतलब मादा पक्षी को लेकर, जो नर पक्षी था वो भी चहचा रहा था. Then they rode on talking and laughing as before. Then they rode, वो फिर से सवार हो गए. राइड मीन्स सवारी करना, एंड रॉड मीन्स अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ राइड. और सवार हो गए अपने घोड़े के ऊपर. टॉकिंग, बातें करने लगे, एंड लाफिंग, और हंसने लगे, एज बिफोर, जैसे कि वो पहले कर रहे थे. इन ए फ्यू मिनट्स दे हैड फॉरगेटन अबाउट द बर्ड्स. इन ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों के अंदर वो सब भूल गए थे अबाउट द बर्ड्स, उस पक्षी को लेकर. बट द फोर्थ लॉयर हुज नेम वाज अब्राहम लिंकन स्टॉप्ड. लेकिन जो चौथा लॉयर था, वकील था, जिसका नेम अब्राहम लिंकन था, स्टॉप्ड, वो वहां ठहरा. ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से नीचे उतरा. वेरी जेंटली, बड़ी भद्रता के साथ. जेंटली मीन्स यू कैन से वेरी सॉफ्टली हियर. टुक द लिटिल वंस अप इन हिज बिग वार्म हैंड. उसने टुक द लिटिल वंस, जो लिटिल वन छोटे पक्षी थे, अप इन हिज बिग वार्म हैंड, उसने अपने बड़ी बाजू के अंदर उन्हें उठाया. दे डिड नॉट सीम फ्राइटन्ड. They did not seem frightened means afraid. वो डरे हुए नहीं दिखाई दे रहे थे. But chirped softly, लेकिन वो चहचहा रहे थे. Softly, बड़ी विनम्रता से. As if they knew they were safe, जैसे कि वो जानते हो वो क्या है. They were in safe hand. They were सुरक्षित. You can say वो बड़े ही सुरक्षित है. वो उन्हें ऐसा फील हो रहा था. Never mind my little fellow, said Mr. Lincoln. Mr. Lincoln ने क्या कहा? Never mind my little fellow. मेरे छोटे fellow साथियों, never mind. कोई बात नहीं. सैड मिस्टर लिंकन, आई एम गोइंग टू पुट यू इन योर माइंड. कोई चिंता मत करो. आई एम गोइंग टू पुट यू इन योर ओन कोजी लिटिल बेड. मैं तुम्हें रखने जा रहा हूँ तुम्हारा जो कोजी, कोजी मीन्स है कंफर्ट, लिटिल बेड, जो तुम्हारा लिटिल बेड है, घोंसला है, जो कंफर्टेबल तुम्हारा जो हाउस है, मैं उनके अंदर तुम्हें रखने जा रहा हूँ. नाउ टर्न योर पेज स्टूडेंट्स ऑन योर पेज नंबर 56. Then he looked up to find the nest from which they had fallen. Then he looked up, तब उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर मिस्टर लिंकन ने देखा यहाँ पे. To find nest, उनका घोंसला, from which they had fallen, जिससे कि वो नीचे गिर गए थे. It was high, much higher than he could reach. It was high, वो बहुत हाई था, ऊंचा था. Much higher, और इससे भी ज्यादा मिस्टर लिंकन could reach, चढ़ सकते थे. But मिस्टर लिंकन कुड क्लाइम, और उन्होंने क्लाइम भी किया, चढ़े भी ऊपर. ही हैड क्लाइम मैनी ए ट्री व्हेन ही वाज ए बॉय. ही हैड क्लाइम, वो बहुत सारे वृक्षों पे पहले भी चढ़ चुके हैं जब वो क्या थे, बॉय थे, लड़के थे. ही पुट द बर्ड्स सॉफ्टली, उन्होंने उन बर्ड्स को सॉफ्टली, बड़े ही सॉफ्टली यानी बड़े तरीके से, आरामदायक तरीके से उन्हें रखा. वन बाय वन, एक एक करके. इनटू देयर वार्म लिटिल होम्स, उनके छोटे से घर के अंदर, मीन्स उनके नेस्ट के अंदर. टू अदर बेबी बर्ड्स वर देयर, दूसरे दो बेबी बर्ड्स भी वहां पे थे, यानी दो छोटे पक्षी भी वहां पे और थे. दैट हैड नॉट फॉलन आउट, जो नीचे नहीं गिरे थे. ऑल कुडल्ड, कुडल्ड मीन्स सो अफेक्शन, मीन्स एक दूसरे को अफेक्शन दिखाने लगे, लव दिखाने लगे. और डाउन टुगेदर एंड वर वेरी हैप्पी. डाउन टुगेदर मतलब एक दूसरे के गले मिलने लगे, आप कह सकते हो, यहाँ पर अफेक्शन दिखा रहे थे. एंड दे वर सीम वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे एक दूसरे से मिलकर. Soon the three lords who had ridden ahead stopped at a spring to give their horses water. Soon, जल्द ही the three lords who had ridden ahead, जो आगे निकल चुके थे, stopped at a spring, वो रुके. spring जो वहाँ पे स्प्रिंग सीजन है, जो बारिश का जो मौसम है, उसके कारण to give their horses water, अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए. Where is Lincoln? asked one. उनमें से एक ने पूछा, Where is Lincoln? अब्राहम लिंकन कहाँ है? All were surprised to find that he was not with them. All were surprised. वो बड़े ही हैरान थे. Surprise means very shocked. To find that ये देखकर कि लिंकन उनके साथ नहीं था. Do you remember those birds? said Mr. Speed. Mr. Speed ने कहा, क्या तुम्हें Do you remember याद है those birds, उन पक्षियों के बारे में? Very likely he has stopped to take care of them. Very likely, हो सकता है. Very likely he has stopped to take care of them. वो वहां पर उनकी मदद करने के लिए, टेक केयर, परवाह करने के लिए वहां पे रुक गया. In a few minutes Mr. Lincoln joined them. In a few minutes, थोड़ी मिनटों के अंदर Mr. Lincoln joined them. Mr. Lincoln ने उनको ज्वाइन कर लिया, मीन्स उनके साथ आ गए, उनका साथ ले लिया. His shoes were covered with mud. उनके जो शूज थे, जूते थे, covered with mud, वो कीचड़ से सने हुए थे. He had torn his coat on the
thorny tree. He has torn, उनका जो कोट था वो भी torn फट चुका था on the thorny trees, जो नुकीले बड़े बड़े ट्रीज थे उसी झाड़ीदार उनसे. Hello Abraham said Mr. Hardin. Hello Abraham said Mr. Hardin. Mr. Hardin ने hello किया Mr. Abraham को. Where have you been? तुम कहाँ थे अभी तक? I stopped a minute to give those birds to their mother. He answered. I stopped a minute. मैं कुछ मिनट के लिए रुक गया था. टू गिव दोज बर्ड्स, उन पक्षियों को देने के लिए. टू देयर मदर, उनकी माताओं को. ही आंसर, उन्होंने आंसर दिया, उत्तर दिया, रिप्लाई किया उन लर्ड्स को. वेल वी ऑलवेज थॉट यू वर ए हीरो सैड मिस्टर स्पीड. वेल वी ऑलवेज, हम अक्सर अच्छा सोचते हैं कि यू वर ए हीरो, तुम एक हीरो थे. सैड मिस्टर स्पीड, मिस्टर स्पीड ने कहा. नाउ वी नो इट, अब हम ये जानते भी, हम ये जान भी गए हैं. देन ऑल थ्री ऑफ देम लाफ्ड हार्टली. Then all three of them, अब वो तीनों ही laughed, हंसने लगे loudly. Heartily means loudly यहाँ पर. किसके ऊपर? मिस्टर लिंकन के ऊपर. They thought it so foolish that a strong man should take so much trouble just for some worthless young bird. They thought, उन्होंने सोचा, it's so foolish, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, that a strong man, कि एक strong man should take so much trouble, कि बहुत सारी ट्रबल मुसीबतें उठाकर just for some worthless young bird, उनकी हेल्प करता है, ट्रबल मुसीबतें उठाता है. किसके लिए? वर्थलेस मीन्स ऑफ नो वैल्यू, जिन पक्षियों की कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए. जेंटलमैन सैड मिस्टर लिंकन, आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टुनाइट. अब मिस्टर लिंकन क्या कह रहे हैं? जेंटलमैन जो मेरे साथियों, नौजवानों, या यू कैन से सज्जनों. आई कुड नॉट हैव स्लीप्ट टुनाइट. स्लैप सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लीप, कि मैं आज रात नहीं सो पाता. इफ आई हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस लिटिल रॉबिन्स टू पैरिस एंड द वेट ग्रास, अगर मैं इन हेल्पलेस लिटिल पक्षियों को, रॉबिन को वहां पर छोड़ देता उस गीली घास के अंदर, तो मैं आज पूरी रात सो नहीं पाता. सो राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज जेम्स बाल्विन. So students, you will read this chapter and today we are going to write its word meaning and hard words. So on your page number 57 also some lines about this author James Baldwin. 1841 to 1925 was born and इंडियाना, जो इंडियाना में जिनका जन्म हुआ था. इट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है. बाय द एज ऑफ 24 ही हैड मेड ए कैरियर एज एन एजुकेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. उनकी जब 24 साल की आयु थी तो उन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की एज एन एजुकेटर मीन्स शिक्षक के रूप में, एंड एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, मीन्स आप कह सकते हो प्रशासक के रूप में. ही वॉज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर राइटर, वो बड़े ही पॉपुलर राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं. एंड रॉट बुक्स फॉर चिल्ड्रन ऑन सब्जेक्ट लाइक लेजेंड्स, मिथोलॉजी, बायोग्राफी एंड लिटरेचर. और उन्होंने बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक लिखी है जिनमें लेजेंड्स, मिथोलॉजी, बायोलॉजी एंड लिटरेचर भी है, साहित्य, बायोग्राफी और जीवनियों से संबंधित. ही रॉट ओवर 30 बुक्स अबाउट फेमस पीपल इन हिस्ट्री. ही रॉट ओवर 30 बुक्स, उन्होंने 30 से ज़्यादा लगभग पुस्तकें लिखी है फेमस पीपल इन हिस्ट्री, जो इतिहास के फेमस जो लोग हैं उनके ऊपर. ही ऑल्सो रिटोल्ड क्लासिकल टेल्स. ही ऑल्सो रिटोल्ड मीन्स दोबारा सुनाना, टेल मतलब बताना. क्लासिकल टेल्स, क्लासिकल आप कह सकते हो जो पुरानी जो टेल्स है, टेल्स मीन्स स्टोरी, कहानियाँ उन्होंने बताई है. दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक. ये जो स्टोरी है उनकी बुक में से ली गई है, जिस बुक का नाम है 50 फेमस स्टोरी रिटोल्ड, उसमें से ली गई है. सो लेट्स स्टार्ट. Now students, you will do this chapter hard words word meaning in your notebook. So let's start. First hard word is underprivileged, means needy people, you can say. Second is dripping. Third is narrow. Next fourth is first. यहाँ ड्रिपिंग का मीनिंग है जो पत्ते थे उनसे जो बूंदे ड्रिपिंग ड्रॉप्स गिर रही थी उसको लेकर. नैरो मीन्स वेरी कंजेस्टेड, जो संकरा होता है. एंड फर्स्ट मीन्स वरीड. Robins, European bird's name is robins. Next is bother. Bother means take trouble. You can see here. Next is frightened, means afraid, डरा हुआ. Gently. Gently means जो सज्जन लोग होते हैं. Gentleman, you are using that word. So gently means बड़ी विनम्रता से, सज्जनता से. You can see. Cuddled means affection show करना, love show करना. And chirping means चहचहाना. Next word meaning you will note down in your notebook also, which is already mentioned in your book. So first is fluttering, sound of wings beating, यानी sound of wings, जो पक्षी थे उसके जो विंग्स थे
पंख थे उसके बीटने की यानी फड़फड़ाने की आवाज। फीबल मीन्स वीक, वो कमजोर थे, बहुत छोटे थे इसलिए। हार्टली मीन्स लाउडली, जोर से। वर्थलेस ऑफ नो वैल्यू, यानी किसी चीज की कोई कीमत नहीं होना, वर्थलेस। पैरिस मीन्स डाई, मरना। Now you will do book exercise also, which is mentioned on your page number 57 in your book. Question is, tick the correct option. So here you will do ticking. I have only mentioned here answer. Already given here three sentences. But which answer I have, you will tick that I have mentioned only. So I am going to read, listen carefully. This story is mainly about how the birds were saved, the court case of the lawyers, the kindness of Abraham Lincoln. So the third answer is correct here, the kindness of Abraham Lincoln. That you will tick in your book. Next is, the mother bird was making a fuss because, जो mother bird थी वो fuss worried थी because there was a storm, the law were noisy, the baby bird were too young to fly. जो baby bird थे वो जो छोटे बच्चे थे वो बड़े ही छोटे थे, to fly, वो उड़ नहीं सकते थे, to fly, उड़ने के लिए. So what will you do here students? The baby birds were too young to fly. That you will do ticking. Third question is, the other three lawyers thought that Lincoln was, जो other three lawyers थे दूसरे, उन्होंने ये सोचा वकील ने कि जो लिंकन है वो क्या है, foolish है, brave है या short tempered है. So you will tick here foolish. Next is fourth, Lincoln's act saw his, जो लिंकन का एक्ट था, जो कार्य था उसने क्या, वो क्या दर्शाता है हमें, patience, selfishness या kindness and gentleness. So you will do kindness and gentleness. That fourth, third option you will do. Next question is on your page number 60. Underline the adverb and write AM for adverb of manner, AP for adverb of place and AT for adverb of time. So here students you have to fill adverb. Firstly you have to know about what is adverb, which is mentioned already above side. So adverb, the word which tell us more about verb. Okay, जो हमें verb के बारे में ज्यादा बताता है, this is known as adverb. So here three adverbs. Adverb of manner, it tell us about how an action is done, कि वर्क जो होता है, कार्य कैसे होता है, how means कैसे. So this is known as adverb of manner. Second is adverb of place, which tell us about where an action is done. Place means where, कहाँ पर कार्य होता है. And third is adverb of time, it tell us about when an action is done, कि when means कब कोई काम होता है. So these are three adverbs. For that you will fill AM adverb of manner, AP adverb of place and AT adverb of time. So first is Rita sang sweetly. This is your how she is singing sweetly. So adverb of manner. Next is Raju goes for his violin class every day. Every day. Adverb of time. This tells us. Okay. AT you will write. Mika felt cool breeze blow softly on her face. AM, softly, you will do underline. Next is fourth, it is raining, let us go inside. Inside means under, place. AP. Next is Dolly dance gracefully. How? She danced gracefully. Adverb of manner in AM. She has travelled everywhere. Place. AP you will write. The old man was walking slowly. How? Walking slowly. AM, adverb of manner. The kittens are playing there. AP. There, place, here, there, inside. So AP you will write. Next question is on your page number 61. Now fill in the blanks with the correct words from the brackets. First, I have already mentioned your fill-ups which you will fill inside in your book. She finished her day's work and was blank, exhausted. Totally you will fill here. Lata Mangeshkar isn't just a good singer, she is very fantastic. Very you will fill second. Third is the Taj Mahal at Agra is definitely stunning. Stunning means attractive point. Fourth is the Ajanta caves in Maharashtra is almost interesting. Almost you will fill here in fourth number. Fifth is the teenager in the group is extremely lazy. Fifth you will fill extremely. Next is six. It was blank, very, absolutely, freezing this morning. So you will fill here very, freezing this morning. Ria is my opinion is extremely talented. 7 you will fill extremely. And 8 is Mrs. San, our class teacher is
really nice. So really you will fill. What are these words? These words are your adverbs and adjective of degree. So that you will fill. These words are tell us one more adjective of degree, degree of adverb also, and frequency of adverb also. So these words tell us about degree of adverbs. So these you will fill also in your book. Thank you.